Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your chapter 10 for ISC Microeconomics, which is Producers Equilibrium. Now, chapter 9, I'll be doing it in the end. Just recently, I have finished chapter 8, which is Cost and Revenue Analysis. If you haven't watched my video, then I'm going to leave the link in my description below. Kindly go first check that out. Get your concepts cleared regarding cost and revenue, and then you come back to this chapter 10. Because after cost and revenue analysis, what is important is to understand that when does a producer derive equilibrium. Post that, we are going to follow it up with chapter 11, that is determination of different kinds of profits for a producer in a perfect competition. And post that, we are going to start with your chapter 9, which is forms of market, and we will wrap up our microeconomics context. Okay, so without wasting much time, let's get started. So as the name suggests, producers equilibrium. I hope आप लोग अभी तक समझ गए होंगे that equilibrium refers to a state of balance or a state of rest. हमने chapter 3 में भी किया था, where we had done consumers equilibrium, that a consumer derive equilibrium where the utility is equal to price. Now it's time for producers equilibrium, right? So since utility is about a state of rest, what a producer would be looking out for, that should be a question. So a producer produces goods and services and sells it with the aim, with the objective of profit maximization, right? The goal of a producer is to maximize its profit. Therefore, a producer is said to be in equilibrium when a producer produces that much level of output which is able to maximize its profit. जब उनको maximum profit आएगा, that is what a producer equilibrium would regard as. And in order to understand the producer's equilibrium or the profit maximization goal, we have been given two approaches over here. One is total revenue and total cost approach, and the other one is marginal revenue and marginal cost approach. So these two topics are very exam oriented question and very significant from your examination point of view. So please इसको ध्यान से समझिएगा, especially the MRMC approach, which is conceptually a little difficult. Provided you understand क्या बोलना चाह रहा है, it will become a piece of cakewalk. ठीक है? So चलो, let's start. सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी, दैट व्हाट इज अ फर्म. वी ऑल नो, हम लोग पढ़ के आए हैं सप्लाई चैप्टर में, दैट अ फर्म इज एन इंडिविजुअल फर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो फर्म क्या हो जाएगा? फर्म वुड बी एन इकोनॉमिक एंटिटी. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एंटिटी, लाइक the ecosystem of the economy, where we have different entities like household hai, who are also regarded as the owners of the factors of production, या consumers भी आप उनको बोल सकते हो. And then we have the production unit, which is a firm who is responsible for producing different kinds of goods and services in the economy. ठीक है? So firm is an economic activity that employs का मतलब that purchases, या तो वो लोग खरीदते हैं, और hires the factors of production to produce different kind of commodities. That is what your firm is. And they sell the goods in turn to consumer. ठीक है? We'll come to what is normal profit and pure profit, वगैरह वगैरह. But first we need to understand that what is the goal of a producer. Since a firm always aims to maximize profit maximization goal होता है किसी भी firm का. Therefore, a firm is said to be in equilibrium when it produces that much level of output where the profit is maximized. ठीक है? जहां पे सबसे ज्यादा profit आएगा, उसी को हम लोग producers equilibrium बोलेंगे. So आइए start करते हैं. Let's go ahead. Starting with that, what is a producer's goal? The goal of a producer is profit maximization. ठीक है? The goal of a producer is profit maximization. And therefore, when would a producer derive equilibrium? What should be your producer's equilibrium? It should be a state where a producer produces that much
लेवल ऑफ आउटपुट इतना गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है विच maximizes its profit, and that is your keyword. When a producer produces that much level of output which maximizes its profit. ठीक है? A producer is said to be in equilibrium when a producer produces that much output. When a producer produces that much output which maximizes its profit. ठीक है? Now going ahead, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के प्रॉफिट होंगे. So we have the types of profit कि एक प्रोड्यूसर को कितना टाइप का प्रॉफिट आ सकता है. So I am going to categorize it into three main category, which is your negative profit or regarded as losses. Then we have zero profit, or you can say it as no profit, no loss. इसका और एक नाम है नॉर्मल प्रॉफिट भी. Normal profit are like your minimum profit which the producer should get in order to retain in the industry. Sustain करने के लिए उसको इतना minimum profit चाहिए, या आप इसको popularly known as break even भी बोल सकते हो. ठीक है? नेगेटिव प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट या ब्रेक इवन भी आप बोल सकते हो. एंड देन कम्स योर पॉजिटिव प्रॉफिट, या आप इसको प्योर प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या आप इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या आप इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या आप इसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो. ठीक है? सो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम: पॉजिटिव प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ इन सारे प्रॉफिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगे. Now, in producer's equilibrium, what actually are we going to do is we are going to combine the elements of cost and revenue that we had done in chapter 8 in order to derive producer's equilibrium. So, negative profit tab aayega when the revenue will be less than the cost. So, if excess of cost over revenue is there, कि खर्चा ज्यादा है, पैसा कम आ रहा है, then a firm is going to incur a loss. Talking about normal profit, when revenue will be equal to cost, that will derive a producer a normal profit or a break even, जहां पे producer अपना सारा cost को cover up कर ले रहा है. उसको जितना भी पैसा आ रहा है, receipts आ रहे हैं, उससे the firm is able to cover up its entire cost. That will be break even. And talking about positive or pure profit, it would be excess of revenue over cost. So when revenue will be greater than cost, तब producer को आपका pure profit आएगा या super normal profit आएगा. ठीक है? Now, keeping that thing in mind, how is a producer equilibrium going to be derived? So, determination of producer's equilibrium. ठीक है? Determination of producer's equilibrium. We are going to derive producer equilibrium by two main approaches. One is your total revenue and total cost approach. And the other one will be marginal revenue and marginal cost approach. Now, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू दी एमआरएमसी अप्रोच, क्योंकि एमआरएमसी अप्रोच अगर समझ में आ गया तो एमआरएमसी का डेरिवेशन, टीआरटीसी का डेरिवेशन एमआरएमसी से ही है. बिकॉज वी नो दैट इफ वी सम अप एमआर, हमने रेवेन्यू में किया था, इफ वी सम अप एमआर वी आर गोइंग टू गेट टोटल रेवेन्यू, एंड इफ वी सम अप एमसी वी आर गोइंग टू गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करके हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे. ठीक है? सो जो टीआरटीसी अप्रोच का डेरिवेशन है वो एमआरएमसी अप्रोच के साथ ही है, तो सबसे पहले एमआरएमसी के साथ ही शुरू करेंगे. ठीक है? चलिए, स्टार्टिंग विथ
MR and MC approach for producer's equilibrium. Now, I hope you all remember that marginal revenue को हम लोग additional revenue बोलते हैं, which a firm gets or earns when the firm sells one additional output. जब फर्म एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचता है उससे जो उसका एडिशनल रेवेन्यू आता है वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है, राइट? एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट और इट इज द एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. जब एक और लेवल ऑफ आउटपुट हम लोग बना रहे हैं उसमें पिछले वाले से हमारा खर्चा कितना चेंज हुआ है, दैट इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट टेल्स अस. सो प्लीज रिमेंबर दैट मार्जिनल इज टॉकिंग अबाउट एडिशनल, दैट इज चेंज. सो जो भी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द प्रॉफिट और चेंज इन द लॉस, एंड उसी चेंज को ऐड करके हमें हमारा टोटल्स भी मिल जाएगा, ठीक है? सो व्हेन अ प्रोड्यूसर डिराइव्स इक्विलिब्रियम फ्रॉम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, देयर आर 3 रूल्स, ठीक है? 3 रूल्स व्हिच नीड्स टू बी सैटिस्फाइड. रूल 1, रूल 2 and rule 3. Now talking about rule 1 is the decision making rule, ठीक है? Decision making rule, which is a rule to decide whether or not to produce इन शॉर्ट रन. क्या हमें प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिसीजन मेकिंग रूल, अ रूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन. नाउ while taking your decision whether you should produce or not produce, you have to consider the kinds of losses that you are incurring in the short run, ठीक है? सो आइए आपका बनाते हैं काइंड्स ऑफ लॉसेस. किस टाइप का नुकसान हो रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्शन करेंगे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको स्टार्टिंग में हमेशा लॉस ही आएगा. बट लॉस भी किस टाइप का आ रहा है उसको कंसिडर करते हुए वी हैव टू मेक आवर डिसीजन, वी हैव टू टेक आवर डिसीजन दैट वेदर शुड वी एंटर इनटू द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन और वी शुड जस्ट स्किप और रिफ्रेन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन. सो उसके लिए काइंड्स ऑफ लॉसेस बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू make it like the losses in production. Losses in production, कैसा लॉस आ रहा है? And we are going to consider losses in shutdown. Now shutdown का मतलब क्या होता है? Shutdown means कि जहां पे आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, you are not producing anything, but however since it is short run, shutdown के केस में you just hold back to your fixed factors. You don't realize your fixed factor. Realize means you do not release your fixed factor. You do not let it go off. So that in case if you want to start production, you can immediately do so by hiring variable factors. That is shutdown point. And then there is another term which is called as close down. जहां पे close down में भी production नहीं होता है, but however you just sell off your fixed factor and you quit the industry. So there is a difference between shutdown and close down. Please ध्यान रखिएगा. Similarity shutdown और close down में कि दोनों में ही production नहीं हो रहा है. Dissimilarity, shutdown में you are retaining your fixed factors, you are holding back your fixed factor so that if you want to start the production you can immediately do so. But in case of close down, you just sell off your fixed factor and quit the industry. That is a difference. सो अगर प्रोडक्शन करते तो हमें कैसा लॉस होगा? वी नो दैट अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमें अपने दोनों कॉस्ट झेलना पड़ेगा, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट भी साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट भी, राइट? शॉर्ट रन में क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है बोल के फिक्स्ड कॉस्ट भी झेलना पड़ेगा एंड साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट भी झेलना पड़ेगा. एंड शट डाउन अगर रखते तो हमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है? वील हैव टू इनकर द फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, नो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सो लेबर्स भी हायर्ड नहीं रहेंगे. सो सपोजिटली आप मान लीजिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट आता है से AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज कमिंग टू ₹10 एंड AVC which is average variable cost is coming to ₹5.
एंड अगर प्रोडक्शन नहीं भी करते तो भी हमें फिक्स कॉस्ट झेलना पड़ेगा ₹10। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट केस सिनेरियो। मान लीजिए आप एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहे हो विच इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट रेवेन्यू चैप्टर में हमने किया है प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू हमेशा सेम होता है। प्लीज रिमेंबर दैट, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो देन प्लीज गो फर्स्ट चेक आउट द पार्ट 3 ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। वहां पे रेवेन्यू करा दिया गया है, उसको कर लीजिए एंड देन यू कम बैक टू दिस चैप्टर ताकि आपका कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, so supposedly firm is charging a price which is equal to average revenue which is rupees say 3। ठीक है, ₹3 चार्ज कर रहा है। सो अगर प्रोडक्शन हो रहा है एंड फर्म ₹3 चार्ज कर रहा है तो आप क्या देख पा रहे हैं, हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के ₹15 पर यूनिट, एंड हमें पर यूनिट प्राइस मिल रहा है ₹3। मतलब इन दिस केस जो हमारा लॉस हो रहा है वो लॉस इज इक्वल टू ₹12, ₹12 का नुकसान हो जा रहा है हमें फर्स्ट केस सिनेरियो में। उल्टा अगर हम लोग प्रोडक्शन नहीं करते, इफ वी केप्ट अ शटडाउन, अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट का ही नुकसान होता खाली, which would have been ₹10। So in that case firm observes कि अरे यार प्रोडक्शन करने में तो ज्यादा नुकसान हो रहा है, बंद रखने में उल्टा कम नुकसान हो रहा है। So what should be done? Then firm decides to close down। So यहाँ पे फर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है, दैट एवरेज रेवेन्यू अपना पूरा लेबर तक का खर्चा को कवर अप नहीं कर पा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक को कवर अप नहीं कर पा रहा है। रेवेन्यू इज लेस दैन एवीसी एज वेल, and that is why losses in production are much more than losses in keeping a shutdown that is not producing anything। therefore if AR will be less than AVC, variable cost से भी कम हो जाएगा, then a firm decides to close down। धंधा का सिंपल उसूल है, जब हम लोग धंधा करते हैं स्टार्टिंग में हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट कवर अप करने का कोशिश नहीं करते। हम देखते हैं कि हमने जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लिया है या जो भी हमारे लेबर है उनको जो भी हमें वेजेस वगैरह देने हैं, एटलीस्ट उतना खर्चा निकल जाना चाहिए बिजनेस से। अगर उतना भी हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं then in that case it is better not to enter into the production of goods and services in that particular industry। so the firm will decide to close down if average revenue is less than average variable cost। please remember that। ठीक है, firm decides to close down। why? the reason being that losses in production are more than loss in shutdown। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं करने में कम नुकसान हो रहा है, प्रोडक्शन करने में ज्यादा नुकसान हो रहा है, दैट इज व्हाई। नाउ सेकंड केस सिनेरियो, आप मान लीजिए अब सेकंड केस में फर्म इज चार्जिंग अ प्राइस व्हिच इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू व्हिच इज ₹5। सो यहां पे जब ₹5 फर्म चार्ज कर रहा है तो उसका कितना कॉस्ट कवर अप हो जा रहा है, पूरा ₹5, यानी पूरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो जा रहा है। एंड लॉस कितना का आएगा, यहां पे लॉस हो जाएगा ₹10 का विच इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। राइट, प्रोडक्शन करने में पूरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कवर अप नहीं हो पा रहा है, सो पूरा फिक्स कॉस्ट का लॉस आ रहा है। एंड रादर शटडाउन रखते, अगर प्रोडक्शन नहीं भी करते तो भी हमें फिक्स कॉस्ट का ही लॉस आता। सो इन अदर वर्ड्स, इन सेकंड केस सिनेरियो when firm is charging ₹5, firm is just able to cover up its average variable cost, right? सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर पा रहा है, फिक्स कॉस्ट को कुछ नहीं कवर अप कर पा रहा है। सो इन दैट केस losses in production are equal to loss in shutdown, right? प्रोडक्शन करे तो भी उतना ही नुकसान हो रहा है, शटडाउन करे तो भी उतना ही नुकसान हो रहा है। Therefore, in this case scenario, where AR is equal to AVC, firm would decide to shut it down। क्योंकि अगर प्रोडक्शन करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उतना ही नुकसान हो रहा है जितना नहीं करके हो रहा है, देन फर्म डिसाइड करेगा ना, सोचेगा, अभी भी विचारेगा कि अभी बंद रखते हैं प्रोडक्शन, आगे देखते हैं, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अगर प्रोडक्शन करते हुए अपना नुकसान को, अपने कॉस्ट को थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कर पाए, एंड इफ वी आर एबल टू acquire a less loss in production than a higher loss in shutdown, only then we'll decide to produce। ठीक है, so firm keeps a shutdown मतलब हो जाएगा कि फर्म अपने फिक्स फैक्टर्स को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, in order to start production whenever it is required आगे जाके, if somehow they'll be able to manage their cost only then। बट वहीं अगर क्लोज डाउन का बात करें, क्लोज डाउन में क्या हो जाएगा, फर्म इज गोना सेल ऑफ इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स, बेच देगा अपने फिक्स फैक्टर्स को एंड इंडस्ट्री से क्विट कर जाएगा।
सो क्लोज डाउन मीन्स क्विट, ठीक है, क्विट द इंडस्ट्री, वाइल शटडाउन का मतलब हो जाएगा रिटेन्ड इन द इंडस्ट्री, रिटेन्ड इन द इंडस्ट्री, अभी भी हम लोग है, छोड़ के नहीं गए हैं, ठीक है। एंड थर्ड केस सिनारियो में अगर मान लीजिए फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है विच इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू एंड विच इज रुपीज से 7 रुपए, सो इन दैट केस हमें कितना का नुकसान होगा, क्योंकि 7 रुपए मिल रहे हमें, मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट पूरा कवर अप हो गया 5 रुपए, एंड थोड़ा सा कुछ अमाउंट, पूरा नहीं बट कुछ अमाउंट फिक्स कॉस्ट का भी कवर अप हुआ जो कि 2 रुपए, 2 रुपीज। सो इन दैट केस जो हमें नुकसान आ रहा है, हमारा लॉस बन रहा है यहाँ पे थर्ड केस सिनारियो में, दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹8। सो प्रोडक्शन कर रहे तो 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर शटडाउन रखते तो 10 रुपए का नुकसान होता, राइट। सो ओवर हियर व्हेन फर्म का एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, are you understanding, जब फर्म का रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट हाउएवर इट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, पूरा एवरेज कॉस्ट कवर अप नहीं हो रहा है बट वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है। सो इस केस सिनारियो में फर्म इज एबल टू cover up its entire variable cost, at the same time some part of the fixed cost, right? So over here your loss in production is less than loss in shutdown, right? Loss in production is less than loss in shutdown. So production करने में कम नुकसान हो रहा है, therefore इस केस में despite losses comma a firm would produce, कि भले ही नुकसान हो रहा है बट स्टिल फर्म प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने में कम नुकसान है, बंद रखने में ज्यादा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया डिसीजन मेकिंग रूल का लॉजिक, कि while deciding whether we have to produce or not to produce in short run, firm has to ensure that उसका जो एवरेज रेवेन्यू है और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, एंड इफ नॉट ग्रेटर देन इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन करने के लिए एटलीस्ट इक्वल टू तो होना ही चाहिए, greater than या at least equal to average variable cost in order to sustain in the industry. So this is your decision making condition. If average revenue will be greater than average variable cost, then despite losses firm is definitely going to produce. But अगर at least equal to average variable cost होगा, then in that case the losses in production and shutdown both will be the same, and firm would retain back in the industry and will not quit the industry and still decide whether it should produce or should not produce, ठीक है। So I hope first rule आपको समझ में आ गया, that is decision making rule निकला that firm का average revenue at least greater than नहीं तो equal to average variable cost होना चाहिए। This is your first condition, decision making. Now once the decision has been made कि production करना है, then आता है आपका rule 2, and rule 2 is like your necessary condition for profit. Please do not mistake, I'm not saying that necessary condition for profit maximization, I am saying necessary condition for profit. So profit तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसकी वजह से रूल 3 बनेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल, बट रूल 3 पे आने के लिए सबसे पहले रूल 2 तो सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट बोलता है कि एक पॉइंट तो ऐसा आना ही चाहिए, वन पॉइंट हैज टू कम वेयर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज जो कि उसको एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, दैट शुड बी एबल टू इक्वलाइज विथ मार्जिनल कॉस्ट। एक पॉइंट के बाद ऐसा आना ही चाहिए दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, इसमें दो केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, या तो फिर एक पॉइंट के बाद मार्जिनल रेवेन्यू कैन एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम रहेगा मार्जिनल कॉस्ट में, जब हम लोग चेंज को ऐड करेंगे, when we are going to sum up the change, तो हमें टोटल मिल जाएगा, राइट। एंड क्योंकि हर बार कॉस्ट ज्यादा रहा है रेवेन्यू से फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज गोइंग टू ऐड, जब इसको ऐड किया जाएगा इट विल ऐड टू लॉस,
नुकसान में ही जोड़ेगा अगर कॉस्ट ज्यादा रहेगा रेवेन्यू से. बट ऑन द अदर हैंड इफ फर्म इज एबल टू come to a situation where उसका additional revenue can be greater, can exceed the additional cost, तो इस सिनेरियो में it is going to add to profit. ठीक है, it is going to add to profits, and therefore we need a situation, we need a scenario where revenue should be able to equalize with cost so that equilibrium can be attained. क्योंकि equilibrium का मतलब होता है equality. बोल के एक पॉइंट तो ऐसा आना ही चाहिए जहां पे रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट. आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ठीक है, सो इसको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ स्केड्यूल जहां पे मैं लिखता हूं यहां आउटपुट. आई एम गोइंग टू टेक माय मार्जिनल रेवेन्यू. आई एम गोइंग टू टेक माय मार्जिनल कॉस्ट. इफ आई सम अप मार्जिनल रेवेन्यू आई विल गेट टोटल रेवेन्यू. If I sum up marginal cost, I will get total variable cost. And दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए यानी कि प्रॉफिट निकाला जाए which is TR minus TVC. हम लोग अभी स्टार्टिंग में प्रॉफिट से वेरिएबल कॉस्ट से ही निकालेंगे क्योंकि फर्म इज नॉट इंटरेस्टेड टू कवर अप इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इमीडिएटली. वो बाद में कवर अप किया जाएगा. अभी फिलहाल लेबर का पूरा खर्चा निकल जाना चाहिए, वहां से पैसा आ जाना चाहिए, सरप्लस आ जाना चाहिए. ठीक है, सो TR माइनस TVC करके जो लेबर के कॉस्ट से थोड़ा सा प्रॉफिट है वो मिल जाए, उसी को कंसिडर करते हुए फर्म अपना प्रोडक्शन डिसीजन लेगा. ठीक है, सो TR माइनस TVC करेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा. प्लीज रिमेंबर दैट दिस पाई स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड एक्चुअली इसका फॉर्मूला है दैट TR माइनस TC. बट सिंस हम लोग MC को ऐड करके अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें बोल के हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ TVC के साथ ही बना रहे हैं. ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी आर स्टडिंग MRMC अप्रोच और TRTC अप्रोच वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारे लिए नहीं है यहाँ पे सिलेबस में. सो हम लोग सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ाई करेंगे इधर में. ठीक है, चलिए. सो आउटपुट लेवल हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मार्जिनल रेवेन्यू ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए 10 10 10 10 10 10 10 10 and 10. We know that firm का perfect competition price, average revenue and marginal revenue same होता है. Why? Because of the given prices under perfect competition. That industry पूरा ये प्राइस को निकाला है and individual firm अपना प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है बोल के MR is given, it is constant. ठीक है, and talking about marginal cost, हमने चैप्टर 8 में देखा है that marginal cost due to law of variable proportion is U-shaped. That is, it decreases first and then increases because of the law of variable proportion. So मार्जिनल कॉस्ट कैसा बनाएंगे? मार्जिनल कॉस्ट को पहले हम लोग करेंगे डिक्रीज. सो आप ले लीजिए 15, देन ले लीजिए 12, देन ले लीजिए 10. राइट, थोड़ा और डिक्रीज करते हैं. देन आप ले लो से फॉर एग्जांपल 7, उसके बाद आप ले लो 5, फिर आप ले लो 3, फिर आप वापस से ले लो 5, फिर आप ले लो 7, फिर आप ले लो 10 एंड उसके बाद 10th लेवल ऑफ आउटपुट यहां 10 और यहां ले लीजिए आप से 15. ठीक है, तो ये हो गया आपका MR एंड ये हो गया MC. मार्जिनल कॉस्ट इज इनिशियली डिक्रीजिंग एंड देन इवेंचुअली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. आइए सम अप करते हैं. सो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 10 का टेबल. सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. ये हो जाएगा आपका TR. एंड MC को सम अप करते ताकि TVC आ जाए. MC हो जाएगा 15 प्लस 22 विल बी प्लस 12 विल बी 27 प्लस 10 विल बी 37 प्लस 7 will be 44. I need a calculator. 15 plus 12 27 plus 10 37 plus 7 will be 44 plus 5 will be 49 plus 3 will be 52 plus 5 will be 57 plus 7 will be
57 plus 7 will be 64 plus 10 will be 74 and 74 plus 15 will be 89. ठीक है, ये हो गया आपका टीवीसी एमसी को ऐड करके। अब दोनों को करते हैं माइनस, टीआर माइनस टीवीसी, तो हमें हमारे वेरिएबल कॉस्ट के बाद माइनस करने के बाद जितना पैसा बच रहा है उसको कंसिडर करेगा एज प्रॉफिट थोड़ा सा। ठीक है, सो पहला आइए स्टार्ट करते। देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट लेवल, फॉर सेकंड लेवल, एंड देन देयर कम्स एन इक्वालिटी दोनों के बीच में, एमआर इज इक्वल टू एमसी। सो हमें कितना का नुकसान हो रहा है, टीआर माइनस टीवीसी। सो 10 माइनस 15 करे तो यहाँ -5 का लॉस आ रहा है, एंड 20 माइनस 27 करे तो यहाँ पे -7 का लॉस आ रहा है, राइट। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब फर्स्ट लेवल पे एमसी वॉज ग्रेटर देन एमआर तो लॉसेस -5 का हुआ, एंड सेकेंड लेवल पे भी जब एमसी वॉज स्टिल ग्रेटर देन एमआर सो वो हमारा लॉस को बढ़ा दिया। सो ये बात तो सच है दैट इफ एमआर विल बी लेस देन एमसी इट इज गोइंग टू एड टू लॉस, राइट, वो मेरा नुकसान को बढ़ाएगा। एंड द मोमेंट इक्वालिटी हो जा रहा है एमआर इक्वल एमसी, दैट इज थर्ड लेवल पे, जैसे ही थर्ड लेवल पे इक्वालिटी आ रहा है तो आप क्या देख पा रहे हैं, 30 माइनस 37 इज -7। हमारा जो लॉस है वो और बढ़ा नहीं, इट डिड नॉट इंक्रीज, रादर इट गॉट फ्रोजन, राइट, इट गॉट फ्रीज्ड। सो यहां पे लॉसेस जो है वो फ्रीज हो गए एंड लॉसेस आर बुक्ड ओवर हियर। एमआर इक्वल एमसी जहां पे फर्स्ट हुआ वहां पे लॉस आके रुक गया है, राइट, वो और ऐड नहीं कर रहा है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों एमआर इक्वल एमसी होना इतना जरूरी है, क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन में हो जैसे ही एमआर इक्वल एमसी होगा आपको वो उसी सिचुएशन में रोक देगा। इट इज नॉट गोइंग टू एस्केलेट फर्दर। जैसे फर्स्ट लेवल में नुकसान हो गया -7 जब एमसी वॉज ग्रेटर देन एमआर, सेकेंड आउटपुट के लिए भी व्हेन एमसी वॉज ग्रेटर देन एमआर तो हमारा लॉसेस बढ़ गया, -5 से -7 हो गया, एंड जैसे ही एमआर इक्वल एमसी हुआ थर्ड लेवल पे हमारा लॉसेस वहीं रुक गया, फ्रीज हो गया, एंड इट डिड नॉट फर्दर एस्केलेट, राइट। दैट इज व्हाई एमआर इक्वल एमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आपको उसी सिचुएशन में वो रोक देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें सिनेरियो क्या हो रहा है जहां पे एमसी इज एबल टू ओवरटेक एमआर, राइट, ये पूरा जोन में यहां से यहां तक हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, एंड फिर से इस लेवल पे आते आते अगेन एमआर बिकम्स इक्वल टू एमसी, राइट। तो ये पूरा जोन में जब तक एमआर ज्यादा है एमसी से, तो आप देखिए क्या हो रहा है, अब 40 माइनस 44 विल बी -4। देखिए नुकसान अभी भी हो रहा है बट धीरे धीरे अब लॉसेस कम होना स्टार्ट हो जा रहे, राइट। एंड देन इट इज 50 माइनस 49 विच इज +1। 50 माइनस 49 इज +1। सो मतलब लॉसेस कम हो गए द मोमेंट एमआर बिकम्स ग्रेटर देन एमसी। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर एमआर ज्यादा हो पाएगा एमसी से सो इट इज गोइंग टू ऐड टू प्रॉफिट। सो इसीलिए आप देखिए -7 से -4 हो गया हमारा लॉस, मतलब लॉस थोड़ा कम हो गया, एंड देन हम लोग पॉजिटिव जोन में आ गए विच इज 1। उसके बाद 60 माइनस 52 इज 8, 60 माइनस 52 इज 8, देन 70 माइनस 57 is 13, then 80 minus 64 is 16, and then 90 minus 74 is 16, and then 100 minus 89 is 11. So आप क्या देख रहे हैं कि जब तक एमआर ज्यादा रहा है एमसी से इट हैज एडेड टू माई प्रॉफिट, एंड मेरा प्रॉफिट को बढ़ाते गया है, प्रॉफिट इंक्रीज होते गया है, एंड जैसे ही वापस से एमआर बिकम्स इक्वल टू एमसी आप देखिए प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट्स आर बुक्ड, प्रॉफिट्स आर बुक्स। सो मतलब 16 जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था 8th लेवल ऑफ आउटपुट पे, उसके बाद जैसे ही 9th आउटपुट पे एमआर इक्वल एमसी हुआ जो प्रॉफिट है वो 16 पे ही आके रुक गया, प्रॉफिट्स गॉट फ्रोज, राइट, प्रॉफिट्स गॉट फ्रोज, सो इट स्टॉप्ड ओवर देयर। सो देयरफॉर एमआर इक्वल टू एमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि अगर आप लॉस वाले जोन पे होंगे तो एमआर इक्वल एमसी का इक्वालिटी ये इंश्योर करेगा कि आपको और फर्दर लॉस ना हो, एंड अगर आप प्रॉफिटेबल जोन पे होंगे तो वापस से एमआर इक्वल एमसी का इक्वालिटी इंश्योर करेगा कि जितना प्रॉफिट आपको आ रहा है वो वहीं आके रुक जाए, फ्रीज हो जाए, राइट।
एंड उसके बाद जब वापस से आप देख रहे हो दैट एमसी ओवरटेक कर जा रहा है एमआर को, तो वो मेरा प्रॉफिट तो आ रहा है लास्ट लेवल में, बट वो कम हो जा रहा है, 11 इज लेस दैन 16, सो प्रॉफिट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग ये वाला जो जोन है इसको तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। सेकेंड इक्वालिटी के बाद हम लोग प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट को कम कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स प्रोड्यूसर्स गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कहां आ रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है इस वाले जोन पे जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी। बट अगर आप ध्यान से देखो कि खाली एमआर इक्वल एमसी बोलना प्रॉफिट के लिए, इज इट सफिशिएंट? इट इज नॉट, क्योंकि एमआर इक्वल एमसी तो दो जगह आ रहा है, एक तो यहां पे भी आ रहा है एमआर इक्वल एमसी थर्ड पे, और एक यहां पे भी आ रहा है नाइन्थ पे। तो क्या मैं थर्ड पे ही एमआर इक्वल एमसी पे रुक जाऊं? कैन आई स्टॉप ओवर देयर? नो, बिकॉज आई हैव बुक्ड अ लॉस, and if I stop at the first level of MR equal MC, it means I have just incurred a loss. I cannot stop there. I have to go on producing so that मेरा MR ज्यादा हो सके MC से, and I can go to my profitable zone. So the second equality is my equilibrium, जो कि हमारा बनेगा तीसरा कंडीशन, रूल 3, and rule 3 is sufficient condition for profit maximization, जो कि है कि एमआर इक्वल एमसी होने से पहले, ठीक है, एमआर इक्वल एमसी जो सेकेंड इक्वालिटी एमआर इक्वल एमसी होने से पहले, इट इज सफिशिएंट, it is needed that MR should have been greater than MC. MR ज्यादा होना चाहिए MC से, so that it can add to profit. फिर इक्वालिटी आए, एंड उसके बाद अगर MR कम हो जाता है MC से, तो it is not a problem ये वाला जोन, because since it is adding to loss, बोल के this can be avoided by producing less. आप कम प्रोडक्शन करके इस जोन को अवॉइड कर सकते हो, राइट? आप इस जोन को अवॉइड कर सकते हो प्रोड्यूस नहीं करके, जहां पे मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। बट ये सेकेंड इक्वालिटी से पहले एमआर का ग्रेटर होना एमसी से बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट इज एडिंग टू माई प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में जोड़ रहा है, बोल के MR being greater than MC is very important so that it can add to the profit. And then उसके बाद जब इक्वालिटी आएगा तो मेरा जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट है यानी 16 वो आके हाईएस्ट प्रॉफिट पे रुक जाएगा, it is going to stop. And therefore it is sufficient that first MR should be greater than MC for the low level of output, then comes my equality between MR and MC, and then if MC overtakes MR, it's okay, that can be avoided by producing less. But जब तक ये जोन रहेगा MR will be greater than MC, we can make more and more profit by producing more. We can add to our profits by producing more till we reach the highest maximum profit, which is MR equal to MC. Second equality, not the first equality. क्यों first equality equilibrium नहीं हो रहा है? क्यों फर्स्ट इक्वालिटी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट इक्वालिटी से पहले MR was less than MC, right? MC was greater than MR. In other words, it was adding to my loss. इसीलिए फर्स्ट इक्वालिटी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, हमने लॉसेस ही बुक किया है। आई होप यू गॉट इट एंड इट इज क्लियर, ठीक है? सो इन अदर वर्ड्स, जब इसको मैं डायग्रामेटिकली बनाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, आइए ग्राफ बनाते हैं। y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस आउटपुट, यहां हम लोग प्राइस ले लेंगे, या आप मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो, सेम थिंग, ठीक है? कुछ ऐसा आएगा हमारा, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? और हमने स्केड्यूल के हिसाब से क्या देखा कि पहले मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, एंड देन उसके बाद इक्वालिटी आ रहा है,
एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट से वापस इक्वालिटी आ रहा है एंड देन ऊपर चल जा रहा है. इन अदर वर्ड्स ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट? ये आया हमारा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ए, पॉइंट ए. एंड पॉइंट ए से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी अप टू दिस जोन हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट MR is less than MC, right? ये जोन में MR is less than MC, so this is my loss वाला जोन. It is adding to my loss. And जैसे ही फर्स्ट इक्वालिटी आ रहा है, MR equal MC हो रहा है, तो मेरे जो लॉसेस हैं वो फ्रीज हो जा रहे हैं, वो रुक जा रहे हैं. एंड देन उसके बाद जब OQ लेवल O से OQ0 लेवल से आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं अप टू OQ1 दैट MR ऊपर है, राइट? MR इज ग्रेटर देन MC. इस जोन में, पूरा ये जोन में MR इज ग्रेटर देन MC, मतलब ये मेरा प्रॉफिट का जोन हो गया एंड इट इज एडिंग टू माय प्रॉफिट. देयरफॉर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टिल वी रीच OQ लेवल 1. एंड द मोमेंट OQ लेवल 1 पे वापस इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स आ रहा था, राइट? शेड्यूल के हिसाब से सेकंड इक्वालिटी पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था. आप खुद देखिए, फर्स्ट इक्वालिटी पे हमें लॉस हो रहा है -7 का एंड सेकंड इक्वालिटी पे हमें 16 दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप टिल हियर, यहां पे प्रोडक्शन करके रुक जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है. उसके बाद वाले जोन में, यानी ये हिस्सा में, अगेन वी आर सीइंग दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, सो इट इज एडिंग टू माय लॉसेस. इन अदर वर्ड्स हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है, मिनिमाइज हो जा रहा है. सो ये जोन को वी आर गोइंग टू अवॉइड बाय प्रोड्यूसिंग लेस, एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस टिल वी रीच द सेकंड इक्वालिटी बिटवीन MR एंड MC. आई होप दैट इज क्लियर. सो इससे हमारा रूल 3 क्या बना? रूल 3 ये बना कि फर्स्ट इंटरसेक्शन MR एंड MC का इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से काट रहा है, मतलब लॉस करते हुए कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बोल के वी कैन नॉट स्टॉप हियर. रादर ये पूरा जोन जो है, यानी बिटवीन OQ0 से OQ1 तक का जो जोन है, यहां पे पूरा प्रॉफिटेबल जोन आ रहा है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज अबव मार्जिनल कॉस्ट, सो इट इज एडिंग टू माय प्रॉफिट. सो वी कैन मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर. So we need to increase our production in order to earn profits, and then we will stop at point E where marginal cost is cutting marginal revenue from below, from नीचे से. Therefore आपका थर्ड रूल क्या बनता है? सॉरी, आपका थर्ड रूल क्या बनता है? दैट MR MC इक्वल होने से पहले, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से, देन कम हो तो चल जाएगा. इसका मतलब, इसको सारे टीचर्स बोलते हैं, रूल 3 इज लाइक मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. ठीक है, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, विच इज योर रूल 2. एंड जब आप एग्जाम में अपना आंसर लिखोगे तो वहां पे हमें रूल 1 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रूल 2 MR इक्वल MC एंड रूल 3 दैट इज MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो चाहिए. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. दिस इज योर MR एंड MC अप्रोच, एंड आई होप इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, विच इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, TRTC अप्रोच. नाउ ये बहुत सिंपल है. TRTC अप्रोच से जब हम लोग इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को कंबाइन करेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन. सो आइए क्विक रिकैप याद दिला दो. टोटल रेवेन्यू कैसा होता था? ऐसा पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, राइट? इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन. व्हाई? ड्यू टू गिवन प्राइसेस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस आर गिवन, बोल के TR कांस्टेंट रेट से ही बढ़ते जाता था. एंड टोटल कॉस्ट कैसा होगा? हमने पढ़ा है दैट शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट ओरिजिन से नहीं शुरू होके अबव ओरिजिन से स्टार्ट होता है, राइट? एंड देन इट इज कनकेव डाउनवर्ड एंड देन कनकेव अपवर्ड. ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट होता है, अबव ओरिजिन से क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होता है कभी भी, प्रेजेंट रहेगा शॉर्ट रन में, बोल के अबव ओरिजिन से स्टार्ट होगा, राइट? एंड देन इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट अप टिल हियर.
and then increases at an increasing rate. So इन दोनों को combine करके, यानी जब हम लोग profit निकालते हैं, pi is your profit. So profit will be total revenue minus total cost. So हमें equilibrium वहां मिलेगा जहां पे जो हमारा डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का सबसे ज्यादा हाई होगा, यानी कि ग्राफिकली समझते हैं. Y axis origin, X axis output, total revenue and total cost. आइए टोटल रेवेन्यू पहले बनाते हैं. दिस इज हाउ योर टोटल रेवेन्यू इज गोना लुक लाइक फ्रॉम द ओरिजिन. पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, positively sloping straight line from the origin depicting that TR is increasing at a constant rate and total revenue will be from above origin due to presence of fixed cost, and then it is concave downward and then concave upward, right? Concave downward, concave upward, increasing at a diminishing rate first and then increasing at an increasing rate. अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि हमें इंटरसेक्शन दो जगह मिल रहा है, एक तो यहां पे मिल रहा है एंड दूसरा यहां पे मिल रहा है, राइट? मैं इसको मार्क कर देता हूं Q0 लेवल एंड Q1 लेवल. आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो यहां से यहां तक OQ0 लेवल तक. OQ0 लेवल तक हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दैट टोटल रेवेन्यू इस जोन में पॉइंट A एंड पॉइंट B मार्क कर दे रहा हूं. अप टू पॉइंट A हम लोग देख पा रहे हैं दैट टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, राइट? रेवेन्यू कर्व नीचे, कॉस्ट कर्व ऊपर है, एंड जब भी TR ग्रेटर लेस देन TC होगा ये हमें क्या दे देगा, ये जोन हमें देगा हमारा लॉस. यहां हो रहा है नुकसान. क्यों? क्योंकि TR इज लेस देन TC. पॉइंट A और पॉइंट B दोनों ही जगह, पॉइंट A और पॉइंट B पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, TR इज इक्वल टू TC, राइट? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों बराबर है. सो मतलब पूरा कॉस्ट कवर अप हो गया. इन अदर वर्ड्स ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट या इसको आप ब्रेक इवन भी बोल सकते हो, ठीक है? दिस इज ब्रेक इवन, नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन. बीच वाले जोन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यानी बिटवीन OQ0 टू OQ1 हम लोग देख रहे हैं दैट टोटल कॉस्ट कर्व नीचे है एंड रेवेन्यू कर्व ऊपर है. इन अदर वर्ड्स TR इज ग्रेटर देन TC. सो TR इज ग्रेटर देन TC बोल के ये हमें कौन सा जोन दे रहा है, ये हमें दे रहा है प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट्स, यहां इस जोन में प्रॉफिट आ रहा है. वापस से इंटरसेक्शन हुआ पॉइंट बी में, TR इक्वल TC ब्रेक इवन, एंड उसके बाद फिर से ये वाला जोन में देख रहे हैं दैट यहां पे वंस अगेन TR इज लेस देन TC, तो ये हमें हो जा रहा है लॉस, नुकसान आ रहा है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोडक्शन किस जोन में करोगे, तो आप बोलोगे प्रोडक्शन में करूंगा बिटवीन OQ0 टू OQ1. क्यों? क्योंकि यहां पे हमें प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि TR इज ग्रेटर देन TC. सो अगर मैं आपसे कंडीशन पूछूं, कंडीशन नंबर 1, एज पर TR-TC अप्रोच प्रॉफिट का कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट का कंडीशन इज वेयर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ताकि हमें प्रॉफिट आ जाए, ठीक है? प्रॉफिट आ जाए. लेकिन अभी भी ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसके लिए बनेगा कंडीशन नंबर 2. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आता है. तो अगर मैं बोलूं आपसे TR-TC में मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे आ रहा है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जहां पे TR एंड TC का डिफरेंस सबसे ज्यादा हाई है, यानी कि समवेयर इन द सेंटर, राइट? OQ2 लेवल. लेट्स मार्क इट एज पॉइंट C एंड पॉइंट E. सो यहां पे हम लोग देख रहे हैं C और E के बीच में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है. उसके पहले तक भी प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज्ड लेवल पे नहीं है. प्रॉफिट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, उसके बाद मैक्सिमम जोन पे आ रहा है प्रॉफिट, एंड धीरे धीरे वापस से कम हो रहा है. सो समवेयर इन द सेंटर, समवेयर मिडिल में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है बोल के कंडीशन नंबर 2 बनेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन वुड बी, profit maximization condition would be where the vertical difference between TR and TC is maximum. जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है TR एंड TC का, समवेयर इन द सेंटर, वहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? अब इसी के साथ आपको प्रॉफिट कर्व भी बनाना पड़ेगा.
सो आइए प्रॉफिट कर्व बनाते हैं। प्रॉफिट कर्व भी बनाते हैं, तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा नीचे से ऐसे एक्सपैंड। प्रॉफिट कर्व कैसा बनेगा, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है। प्रॉफिट कर्व कैसा बनेगा, आप देखिए कि पहले लॉस हो रहा है, राइट, एंड धीरे धीरे जो लॉस है, लॉस का गैप कम होते जा रहा है, मतलब प्रॉफिट आएगा आएगा आएगा। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट कर्व हमारा शुरू होगा नेगेटिव एक्सिस से, यहां से, एंड धीरे 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 ऐसे पॉजिटिवली ऊपर जाना स्टार्ट होगा, राइट, इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट होगा प्रॉफिट कर्व। उसके बाद जहां पे टीआर इक्वल टीसी हो रहा है, मतलब वहां पे जीरो प्रॉफिट आ रहा है, तो बोल के प्रॉफिट कर्व यहां ओरिजिन पे आ जाएगा, टच करेगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट ऐसे आना स्टार्ट हो रहा है और खुल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, राइट। सो प्रॉफिट कर्व ऐसे एस्केलेट करेगा, इंक्रीज करेगा, ऊपर तक जाएगा, जहां पे डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी मैक्सिमम है, वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा हमें, एंड उसके बाद वापस से हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी कम होते जा रहा है, सो प्रॉफिट यहां से रिड्यूस भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वापस से टीआर टीसी इक्वल हो रहा है बोल के जीरो प्रॉफिट इधर में, एंड देन वापस से लॉस हो रहा है बोल के प्रॉफिट का नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका पाई, दैट इज टोटल प्रॉफिट। क्योंकि पहले लॉस हो रहा है बोल के प्रॉफिट नेगेटिव एक्सिस में है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है यानी कि लॉस आ रहा है। उसके बाद ब्रेक इवन हो रहा है बोल के जीरो प्रॉफिट हो गया, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है बोल के प्रॉफिट एस्केलेट करके ऊपर जाके मैक्सिमम हो जा रहा है। उसके बाद प्रॉफिट वापस से कम हो रहा है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, देन वापस से ब्रेक इवन हो रहा है बोल के जीरो प्रॉफिट, एंड देन सिंस वापस से लॉस हो रहा है बोल के नेगेटिव प्रॉफिट। तो ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट कर्व। आई होप दैट इज क्लियर। आपको इसी को डायग्राम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट अप टू OQO लेवल ऑफ आउटपुट TR is less than TC बोल के लॉस हो रहा है, एट OQO लेवल ऑफ आउटपुट एट पॉइंट A TR is equal to TC बोल के ब्रेक इवन, बिटवीन OQ0 से OQ1 TR is greater than TC बोल के प्रॉफिट, but maximum profit is at OQ2 level where the vertical difference between TR and TC is maximum. At OQ1 level, point B, again TR is equal to TC, so break even, and beyond OQ1 level, again TR is less than TC बोल के losses। यही चीज आपको अपने एग्जाम में देके आना है। क्या क्या लिखना पड़ेगा, TRTC आने से आपका फर्म को प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, a producer is said to be in equilibrium when it produces that much output which maximizes its profit। कंडीशन देना है आपका, कंडीशन फॉर प्रॉफिट इज दैट TR should be greater than TC। कंडीशन 2 दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है वेयर द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। ग्राफ डायग्राम का इंटरप्रिटेशन यानी इलैबोरेशन, दैट विल फेच यू योर फुल 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। एंड अगर आपको जानना है कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, क्या लिखना पड़ता है आंसर में, तो हियर इज माय नोट्स। आप मेरे ऐप पे जाइए, इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल, वहां पे ये ऐप एज अ पेड कोर्स 249 रुपीज में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, मैक्रो भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप उसको परचेज करिए एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। इसमें सब दिया हुआ है कि क्या कंडीशन किसमें क्या लिखते हैं, इलैबोरेशन along with your diagram, schedule is optional, if you want you can just skip out the schedule, main is diagram and diagram का interpretation, ठीक है। सिमिलरली TRTC अप्रोच के लिए भी मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, प्रॉफिट कब आएगा, शेड्यूल इज अगेन ऑप्शनल, इफ यू वांट, इफ यू कैन गिव नथिंग लाइक इट, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी अपीलिंग। डायग्राम एंड देन डायग्राम का इंटरप्रिटेशन कहां पे होगा, ठीक है। सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। एंड्रॉइड यूजर डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल, iOS यूजर अगर आप iOS यूजर हो तो आप क्लास प्लस डाउनलोड करिए, ठीक है। आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिए एंड मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है PLYMMV, इसको पंच इन करिए, आप नोट्स को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। So with this we finish our producers equilibrium. In my next video I'm going to come up with chapter 11, उसके बाद chapter 9 and we are going to wrap up microeconomics. So I hope you are liking my content, and if you are then please do like, share, subscribe, keep smiling, keep studying. I'll see you in my next video. Take care, bye bye.